کیا ہوا چھوٹی بہو؟ میں پوچھا لگا رہی تھی۔ کیا ابھی تک گھر کا کام نہیں ہوا؟ بیٹی بس کر رہی ہوں۔ ہاں ہاں جلدی سے کام کرو، میرے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں اور مجھے دال چاول بنا کر دو۔ ٹھیک ہے بہو، پہلے میں تمہارے لیے بھوجن ہی بنا دیتی ہوں۔ ایسا کہتے ہوئے کومل چڑیا رسوئی میں جاتی ہے اور وہ دال چاول بناتی ہے۔ دال چاول بنا کر وہ اپنی بہوؤں کو دیتی ہے۔ بہت سوادشٹ ہے، دیکھا نا کتنا سوادشٹ بھوجن بناتی ہے یہ بڑھیا۔ ہاں پنکی، بھوجن تو سچ میں بہت سوادشٹ ہے۔ چڑیا کی دونوں بہویں مزے سے بھوجن کھاتی ہیں اور اس کے بعد اپنی ساس سے کہتی ہیں، سنو ماں جی، ہم نے بھوجن کھا لیا ہے، تم رسوئی میں جا کر سارے برتن دھو دو، ہو سکتا ہے ہمیں آنے میں دیر ہو جائے، اور ہاں شام کا بھوجن بھی بنا کر رکھنا۔ اپنی ساس کو کام کا آرڈر دے کر وہ دونوں بہویں وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ اے اوپر والے، میں کیا کروں؟ اس عمر میں بھی مجھے کام کرنا پڑ رہا ہے، ایک تو میرے پنکھوں میں بہت درد ہے۔ پھر کومل چڑیا جیسے تیسے کر کے رسوئی میں سارے برتن دھو دیتی ہے اور اس کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتی ہے۔ شام ہو جاتی ہے، چڑیا کے دونوں بیٹے بھی گھر لوٹ آتے ہیں۔ اجی آ گئے آپ؟ ہاں، بھوجن لگا دو، ہمیں بہت بھوک لگی ہے۔ تبھی کومل چڑیا اپنے بیٹوں کے پاس آتی ہے۔ بیٹے آ گئی تم، آج کا دن کیسا رہا؟ کیا ہم تمہیں دکھائی نہیں دے رہے ماں؟ اگر سوال جواب ہو گئے ہوں تو ہمارے لیے بھوجن لگا دو۔ چڑیا یہ باتیں سن کر چپ ہو جاتی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اس گھر میں اس کی آنسوؤں سے کسی کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چڑیا کی بہویں تو لڑتی ہی تھیں، ساتھ میں اس کے بیٹے بھی اپنی ماں سے ٹھیک سے بات نہیں کرتے تھے۔ دیکھ بڑھیا، تجھے کتنی بار کہا ہے کہ آتے ہی ان کا موڈ نہ خراب کیا کرو۔ بڑی بہو، میں تو بس اپنے بچوں سے بات کر رہی تھی۔ اس کی تم چنتا مت کرو، بات کرنے کے لیے ہم ہیں نا۔ واہ بہو، تم نے ٹھیک بات کی ہے، ماں باپ کی ضرورت تو بس بچپن میں ہی ہوتی ہے، جب تک بچوں کو نہانا کھانا نہیں آتا۔ جیسے ہی بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور اپنا کام خود کرنے لگتے ہیں تو انہیں اپنے ماتا پتا کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ انہیں لات مار کر بھگا دیتے ہیں۔ بس بچوں، اب میں اور اس گھر پہ نہیں رہ سکتی، اب میری تم سب کو کوئی ضرورت نہیں رہی، میں ابھی اسی سمے یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ جاؤ جاؤ، کہاں جاؤ گی؟ ہم بھی دیکھتے ہیں، شاہ تمہیں رہنے کے لیے چھت اور بھوجن تو مل رہا ہے نا۔ چاہے مجھے جہاں بھی بھٹکنا پڑے، لیکن تم جیسی اولاد کے پاس نہیں آؤں گی۔ کومل چڑیا اپنا سامان باندھتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ چڑیا کے دونوں بیٹے اور اس کی بہویں چڑیا کو جاتا ہوا دیکھ رہی تھی، لیکن کوئی بھی چڑیا کو جانے سے روکتا نہیں ہے۔ چڑیا بھوکی پیاسی جنگل میں اکیلی بھٹک رہی تھی۔ ایک دن اسے اپنی پرانی سہیلی بجلی کافی ملتی ہے۔ ارے کومل، یہ تم نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے؟ اپنی پرانی سہیلی کو دیکھ کر چڑیا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ اسے ساری بات بتا دیتی ہے۔ تم چنتا نہیں کرو چڑیا، کہتے ہیں نا اوپر والا سب دیکھ رہا ہے۔ تم چلو، تم میرے ساتھ چلو۔ بجلی کافی کومل چڑیا کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتی ہے اور اسے کھانے کے لیے بھوجن دیتی ہے۔ بجلی بہن، تمہارے بچے کہاں ہیں؟ کومل بہن، کچھ سالوں پہلے میرے بچوں نے بھی مجھے گھر سے نکال دیا۔ یہ بچے ایسا ہی کرتے ہیں، جب انہیں ماں باپ کی ضرورت نہیں پڑتی تو انہیں لات مار کر نکال دیتے ہیں۔ لیکن چڑیا بہن، تب میرے پاس کچھ گہنے تھے جنہیں بیچ کر میں اپنا کاروبار کرتی ہوں، خود کماتی ہوں اور خود کھاتی ہوں، مجھے اب کسی کی چنتا نہیں ہے۔ تم چنتا نہیں کرو، اب ہم دونوں سہیلیاں مل کر اپنی زندگی کی نئی شروعات کریں گے۔ چڑیا بہن، اب مجھے اکیلے نہیں رہنا پڑے گا، اب تم میرے ساتھ ہو اور میں اپنے من کی ساری باتیں تم سے کر سکوں گی۔ ایسے وہ دونوں سہیلیاں باتیں کرتے کرتے سو جاتی ہیں۔ اگلی صبح ہو جاتی ہے۔ بجلی، میں کیا کہہ رہی تھی کہ میں بھی کوئی تمہارے ساتھ کام شروع کروں، ایسے تمہاری مدد بھی ہو جائے گی اور ہم دونوں کو سہارا بھی مل جائے گا۔ ہاں ہاں چڑیا، کیوں نہیں، کیا تم بھی پکوڑے بنا کر بیچو گی؟ نہیں بجلی بہن،
मुझे पकोड़े तो अच्छे नहीं बनाने आते, लेकिन हाँ, दाल चावल मैं बहुत अच्छे बनाती हूँ। हाँ हाँ चिड़िया बहन, मुझे आज भी तुम्हारे दाल चावल का स्वाद अच्छे से याद है। तुम उन्हें बनाकर बहुत अच्छे से मुनाफा कमा सकोगी। ऐसे वो दोनों सहेलियाँ एक ही ठेले पर दाल चावल और पकोड़े बनाकर बेचने लगती हैं। समय गुजरने के साथ साथ उनका ठेला पूरे जंगल में मशहूर हो जाता है। जंगल के सभी पक्षी दूर दूर से उनके दाल चावल और पकोड़े खाने आते थे। जब ये बात चिड़िया के बच्चों को पता चलती है तो वो कहते हैं, बड़े भैया, माँ बहुत पैसे कमा रही हैं, हमें उन्हें वापस लेकर आ जाना चाहिए। हाँ छोटे, तुम ठीक कह रहे हो, ऐसे हमें भी बहुत फायदा होगा। ऐसे लालच में चिड़िया के दोनों बेटे और उसकी बहुएं चिड़िया के पास पहुंच जाती हैं। माँ, हमें माफ कर दो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारे बिना घर सूना लगता है। तुम चलो, हमारे साथ वापस घर चलो। देखा बिजली बहन, मैंने कहा था ना कि जब इन्हें पता चलेगा कि माँ इनकी पैसे कमाने लग गई है तो ये भागे भागे आएंगे। चली जाओ यहाँ से, अब मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। उन सबको अपना जवाब मिल जाता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। अब कोमल चिड़िया और बिजली का भी दोनों सहेलियाँ एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। बंटी जी, ये आप क्या कह रहे हैं? आपकी नौकरी चली गई, अब हम क्या करेंगे? कहाँ से खर्चा चलेगा घर का? अभी तो तुम्हारी दो बहनें भी कुंवारी हैं, उनकी भी शादी करनी पड़ेगी। कैसे होगा ये सब? कोमल, क्या करूं? बादल सेठ ने काम से निकाल दिया, लेकिन तुम चिंता नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। 2 साल बीत जाते हैं, लेकिन बंटी चीड़े को जंगल पे कहीं भी काम नहीं मिलता। जो जमा पूंजी बंटी चीड़े ने जमा कर रखी थी, उससे अपनी एक बहन की शादी कर देता है। कुछ ही दिनों बाद कोमल चिड़िया एक बेटी को जन्म देती है, जिससे चिड़िया की चिंताएं और भी बढ़ जाती हैं। बंटी जी, अब हमारी बेटी हो गई है, अपनी इच्छाएं तो मैं मार भी लूं, पर हमारी बेटी की ज़रूरतें तो पूरी करनी ही पड़ेंगी। मैं जानता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे ही 1 साल बीत जाता है। कोमल चिड़िया एक और बेटी को जन्म देती है। बंटी की माँ अपने बेटे से कहती है, बंटी बेटा, तेरी एक बहन की शादी तो हो गई, लेकिन अभी दूसरी बैठी है, उसका क्या होगा? माँ, हम ये घर बेच देंगे, कुछ दिन हम तिनकों के घोंसले में रह लेंगे। मैं क्या करूँ, दिन रात कोशिश में लगा रहता हूँ, लेकिन जंगल में कहीं भी काम नहीं मिल रहा। बंटी जी, बहनों के लिए आप ये घर बेच दोगे? हमारी भी 2 बेटियां हैं, फिर हम उनके लिए क्या बेचेंगे? बात शुरू करूं। कुछ दिनों बाद कोमल चिड़िया को उसकी माँ वाले जंगल का एक चिड़ा मिलता है। चंदू चिड़ा कोमल चिड़िया की शादी से पहले उसे बहुत पसंद करता था, लेकिन कभी उससे कुछ कह नहीं पाया था। कोमल, तुम यहाँ कैसे, और तुमने अपना ये कैसे हाल बना रखा है? चंदू, मैं ठीक हूँ, यहीं पास में तिनकों के घोंसले में रहती हूँ। मगर कोमल, तुम्हारा पति तो बहुत अमीर था, फिर तुम ये तिनकों के घोंसले में कैसे? चंदू, मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे, घर बिक गया, बहुत गरीबी में दिन गुजार रहे हैं हम, कोई काम भी नहीं कर पा रही हूँ, मेरे पास केवल यही पैसे हैं। मेरी सास बहुत बीमार रहती है और मेरी 2 बेटियाँ भी हैं। वक्त ने हमारा साथ छोड़ दिया, मैं सब कैसे कर पाऊंगी? चिंता नहीं करो कोमल, तुम चलो मेरे साथ। फिर चंदू चिड़ा कोमल चिड़िया को एक बड़ी चूड़ियों की दुकान पर ले जाता है। कोमल, ये मेरी ही दुकान है, तुम्हें फ्री में देकर मैं तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए मैं तुम्हें कुछ पैसों में ये टोकरी भरकर चूड़ियां दे रहा हूँ। मैं तुम्हें ये केवल आधे रेट में दे रहा हूँ। तुम इन चूड़ियों को जंगल में पहले कम दाम पर बेचना, और फिर जैसे ही मुनाफा दिखाई दे तो दाम बढ़ा देना। ये देखकर कोमल चिड़िया बहुत खुश होती है, क्योंकि उसे अपनी परेशानी का हल जो मिल गया था। वो चूड़ियों की टोकरी उठाए वहाँ से चली जाती है और जंगल में चूड़ियाँ बेचना शुरू कर देती है। चूड़ियाँ लो चूड़ियाँ, सुहागन वाली रंग बिरंगी चूड़ियाँ लो। कोमल चिड़िया जंगल के हर कोने में जा जाकर पक्षियों के घरों में चूड़ियाँ बेचती थी।
और बीच बीच में आकर अपने परिवार को भी देख लेती थी। आसपास के पक्षी उससे चूड़ियाँ खरीदते थे। सभी पक्षियों को चिड़िया की चूड़ियाँ बहुत पसंद आने लगी थीं। अरे वाह वाह चिड़िया, तुम्हारी चूड़ियाँ तो बहुत सुंदर है, मुझे लाल रंग की चूड़ियाँ दे दो। हाँ हाँ कभी बहन, ये देखो, ये लाल रंग की चूड़ियाँ आपके पंखों में बहुत सुंदर लगेंगी। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। अब कोमल चिड़िया के भी अच्छे दिन होने लगे। कोमल चिड़िया चंदू चिड़िया के पास जाती है। चंदू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से ही आज मेरा परिवार खुश है। ये तो तुम्हारी मेहनत है कोमल, मैंने कुछ भी नहीं किया। चंदू, मैं सोच रही थी मैं यहाँ से चूड़ियाँ खरीदती हूँ और फिर जंगल के पक्षियों के घरों में जा कर बेचती हूँ। इसमें बहुत समय लग जाता है। सोचा है कि क्यों ना मैं चूड़ियाँ बनाना ही सीख लूँ। हाँ, ये तुमने बहुत अच्छा सोचा है कोमल, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। माँ, क्या अभी तक पापा नहीं आए? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्या आज फिर हमें भूखा सोना पड़ेगा? हाँ माँ, भैया ठीक कह रहा है। मुझे भी नींद नहीं आ रही। ऐसे लग रहा है जैसे मेरे अंदर कुछ टूट रहा है। क्या आज पापा हमारे लिए मीठा फल लाएंगे? मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा सब्र करो। बस तुम्हारे पापा जंगल के उस पार गए हैं, जहाँ ढेर सारे मीठे मीठे फल हैं। वो जरूर कुछ न कुछ लेकर आएंगे। बस अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि तुम एक बहुत बड़े मीठे फल के पेड़ के ऊपर बैठे हो। अरे ओ कोमल, बंद कर, ये झूठी तसल्लियाँ देना बंद कर। तेरे इस चूं से तेरे बच्चों का पेट नहीं भरने वाला। जब से तू इस घर में आई है तो मनहूसियत पूरे घर में छा गई है। मेरा बेटा बंटी, जो कभी जंगल का सबसे शक्तिशाली पक्षी था, आज हड्डियों का ढांचा बन गया है, सिर्फ तेरे कारण, इन मनहूस बच्चों का पेट पालने के लिए। माँ जी, ऐसा ना कहें, बच्चे तो मासूम होते हैं। और माँ जी, इन सब में मेरा क्या कसूर है? मैं तो खुद कई दिनों से सिर्फ पानी पीकर ही गुजारा कर रही हूँ। कसूर तेरी किस्मत का है। देखो जरा, रात आधी गुजर गई है और मेरा बेटा अभी तक किसी खतरे में भटक रहा होगा। सुन ले, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं तुझे जीने नहीं दूंगी। तभी बंटी चिड़ा थका हारा घर लौट आता है। कोमल, माँ, मुझे माफ कर देना। मैंने पूरा जंगल छान मारा। चीलों से छुपकर मैं दूर दूर जंगल तक गया, पर कहीं भी मुझे कुछ खाने के लिए नहीं मिला। जंगल में सूखा पड़ा है, कहीं से कोई दाना तक नहीं मिल रहा। बंटी जी, आप आ गए हैं, यही बहुत है। ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। आप आराम करें, आपके पंख घायल हो चुके हैं। आराम? ये आराम का समय है? फिर बंटी चिड़ा अपने घोंसले में सो जाता है और कोमल चिड़िया अपने पति के पंखों पर मरहम लगाती है। अगली सुबह हो जाती है। बंटी सुबह सवेरे ही दाने की खोज में निकल जाता है। कोमल चिड़िया अपने बच्चों को लिए बाहर बैठी हुई थी। तभी बिजली कवि मीठे फलों की टोकरी लिए वहाँ आती है। अरे कोमल बहन, अभी तक यहीं बैठी हो? मैं यहाँ से घर जा रही थी तो बच्चों के रोने की आवाज सुनकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। देखो कैसे इन मासूम बच्चों के चेहरे पीले पड़ गए हैं। ऐसा कहते हुए बिजली कवि एक मीठा फल उन बच्चों के सामने रखती है। ये लो बबलू और मीना, ये मीठा फल खा लो। तभी चिड़िया की सास भी वहाँ आ जाती है। अरे बिजली, तेरे पास इतना फल कहाँ से आया? पूरे जंगल में तो सूखा पड़ा है, पक्षी मर रहे हैं भूख से, और तेरे पास ये फलों से भरी हुई टोकरी। माँ जी, मेरे जैसा दिमाग हो तो सब कुछ मिलता है। मैंने सुना है आपका बेटा बंटी पूरी रात भटकता रहा है, पर इसे खाने को कुछ नहीं मिला। सच तो ये है कि वो मेहनत तो करता है, लेकिन किस्मत का मारा है। बिजली बहन, आपका फल देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप यहाँ क्यों आई हैं? मैं जानती हूँ कि बगैर किसी मकसद के आप किसी के पास नहीं जाती। तौबा तौबा कोमल, तुम मुझे इतना गलत समझती हो। मैं तो सिर्फ मदद करने के लिए आई थी। मैं तो तुम्हें बताने आई थी कि नदी के उस पार काला महल है, जिसकी मालकिन एक बहुत बड़ी और दयादिल चील है। इसे अपने अंडों की निगरानी के लिए एक नौकरानी की जरूरत है। बदले में वो उसे इतना अनाज और सोना देगी
کہ آنے والی 7 نسلیں शाही जिंदगी गुजारेंगी। नहीं बिजली, सब जानते हैं जो पक्षी भी नदी के उस पार काले महल में गया है वो कभी वापस नहीं आया। मैं अपने बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तो ठीक है चिड़िया, मत जाओ, अपने सामने इन बच्चों को मरते हुए देखो। जरा देखो अपने बच्चों को, भूख के कारण कैसे कमजोर हो गए हैं। कल को ये मर गए तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। माँ वही होती है जो अपनी संतान के लिए अपनी जान खतरे में डाल दे, वो नहीं जो इनका तमाशा देखे। हाँ कोमल, बिजली ठीक कह रही है, तू तो बहुत बड़ी नेक बनती थी, अब अपने बच्चों की जिंदगी के लिए इतनी सी कुर्बानी नहीं दे सकती। बंटी को मैं संभाल लूंगी, तू बस जा और अनाज लेकर आ जा। अगर तू ना गई तो मैं समझूंगी कि तू इन बच्चों की सगी माँ नहीं है बल्कि इनकी दुश्मन है। कोमल चिड़िया अपने बच्चों की तरफ देखती है जो भूख से नाडाल होकर जमीन पर पड़े थे। वो रोते हुए कहती है, क्या क्या वो वाकई ही हमें अनाज देगी? क्या मेरे बच्चे पेट भरकर खाना खाकर सो सकेंगे? हाँ हाँ चिड़िया बहन, बस रात की ही तो बात है। तुम रात में जाओगी, अंडों का पहरा दोगी और सुबह होते ही अनाज का ढेर लेकर घर वापस आ जाया करोगी। चिड़िया बहन, तुम चिंता क्यों करती हो, मैं खुद तुम्हें वहाँ छोड़ कर आऊंगी। कोमल चिड़िया अपने बच्चों के पास जाती है। मेरे जिगर के टुकड़ों, मुझे माफ कर देना। तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही बल्कि तुम्हारी जिंदगी लेने जा रही है। अगर मैं लौटकर ना आई तो याद रखना, तुम्हारी हर सांस में मेरी ममता की खुशबू होगी। तभी बुलबुल वहाँ आ जाती है। कोमल, ये तुम क्या करने जा रही हो? बिजली की बातों में मत आओ, क्या तुम पागल हो गई हो? इस कपी का एतबार करना बहुत मुश्किल है। बुलबुल, मैं सब जानती हूँ, मेरा दिल भी कह रहा है कि ये रास्ता मौत का है, लेकिन जरा देखो, मेरे बच्चे भूख से दम तोड़ रहे हैं। अगर मैं यहाँ बैठी रही तो आज रात ये मर जाएंगे। ऊपर वाला सब ठीक करेगा, हो सकता है मैं इनके लिए भोजन ले आऊँ। अगर मुझे मौत मिलती है तो मिल जाए, लेकिन मेरे बच्चों को जीवन जरूर मिलेगा। फिर कोमल चिड़िया बिजली कवि के साथ वहाँ से चली जाती है। बिजली कवि चिड़िया को एक काली गुफा में ले जाती है। आ गई बिजली, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अरे वाह वाह, ये तो बहुत नरम मांस है, जो मैं कभी ना कर पाई तुमने वो कर दिखाया। इसे चिड़िया का मांस ही तो मैं खाना चाहती थी। बिजली बहन, ये सब क्या कह रही है चील? अरे ओ पागल चिड़िया, ममता ने तुझे अंधा कर दिया था। अब तू इस चील की कैदी है और मैं तेरे घर पर राज करूंगी। धोखा बिजली, तुम इतनी गिर जाओगी मैंने कभी नहीं सोचा था। अब मेरे बच्चों का कौन सहारा होगा और कौन उन्हें दाना देगा? चील आगे बढ़ती है और कोमल चिड़िया को एक पिंजरे में कैद कर लेती है और बिजली कवि को बदले में ढेर सारा भोजन देती है। बिजली खुश होकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर बुलबुल कबूतर और तोते के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। वो काली कवि बहुत बुरी है, जरूर चिड़िया खतरे में होगी। हम सब दोस्तों को मिलकर चिड़िया की मदद करनी होगी। ऐसा कहते हुए वो तीनों दोस्त चिड़िया की मदद के लिए वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया, मुझे उल्लू वैद ने कहा है कि अगर मैं पीले रंग की चिड़िया का सूप पीऊंगी तो हमेशा जवान रहूंगी। आज तेरा आखिरी दिन है, याद कर ले, जिसको भी करना है। कोमल चिड़िया तो रो रही थी। जैसे ही चील उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है तो उसके दोस्त वहाँ आ जाते हैं। कबूतर, तोता और बुलबुल तीनों मिलकर चील पर हमला करते हैं और हमले में चील घायल हो जाती है। डर के मारे वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप समय पर ना आते तो मैं शायद अपने बच्चों को कभी ना देख पाती। चिड़िया बहन, गुफा में ढेर सारा भोजन है, लेकर चलते हैं। दूसरी ओर बिजली कवि और बादल कव्वा मिलकर चिड़िया के घर पर कब्जा कर लेते हैं। वो बच्चों को और सावित्री को रस्सियों से बांध देते हैं। कवि, तू बहुत बुरी है, तेरी बातों में आकर मैंने अपनी बहू को मौत के मुंह में भेज दिया। तभी कोमल चिड़िया
اور اس کے سبھی دوست وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ وہ کفوں پر حملہ کرتے ہیں اور انہیں گھائل کر کے وہاں سے بھگا دیتے ہیں۔ بچوں، یہ لو بھوجن، دیکھو آپ کی ماں آپ کے لیے دانا لائی ہے۔ ببلو اور مینا اپنی ماں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ بیٹی مجھے معاف کر دے، میں نے تجھے غلط سمجھا۔ دوستو، ماں کی قدر کریں اس سے پہلے کہ وہ خاک کا حصہ بن جائے۔ جنگل میں دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ بجلی کا بھی چھاتے کے نیچے بیٹھی اپنے پنکھوں کی تیل سے مالش کر رہی تھی۔ کومل دیکھ، میرے پنکھ کتنے چمک رہے ہیں، پورے جنگل میں کسی کوی کے اتنے سندر پنکھ نہیں ہوں گے۔ آج مجھے پتا ہے کوئی نہ کوئی شہزادہ کوا مجھے دیکھنے ضرور آئے گا۔ ہاں ہاں بجلی، تم ہر روز یہی کہتی ہو۔ تمہاری ماں نے کہا تھا کہ اگر اس مہینے بھی کوئی رشتہ نہ ملا تو وہ تمہاری شادی کسی بھی آوارہ کوے سے کروا دیں گی۔ کومل تم تو میری خوبصورتی سے چلتی ہو، دیکھنا مجھے بیانے ایک شہزادہ کوا ہی آئے گا۔ اگلے دن بجلی کوی ایک پیڑ کے نیچے بیٹھی میٹھا پھل کھا رہی تھی۔ تبھی وہاں سے ایک کوا اڑتا ہوا جا رہا تھا جس کی چونچ میں ایک انڈا تھا۔ اچانک چونچ سے انڈا چھوٹتا ہے اور بجلی کوی کے اوپر جا کر گرتا ہے۔ بادل کوا ترنت وہاں آتا ہے۔ ارے واہ، کتنی سندر کافی، یہ تو بالکل بجلی کی طرح چمک رہی ہے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے بدبودار کوے، دیکھو تم نے میرے کالے کالے پنکھ خراب کر دیے۔ آج میرا رشتہ دیکھنے شہزادہ کوا آنے والا تھا، اب میں شہزادی کیسے لگوں گی؟ معاف کیجیے شہزادی، میں نے آج تک ایسی سندر کافی نہیں دیکھی۔ میرا نام بادل ہے، آپ کو دیکھتے ہی مجھے آپ سے پیار ہو گیا ہے۔ بادل کوا بجلی کوی سے پیار بھری باتیں کر ہی رہا تھا کہ پیچھے سے بجلی کی ماں آ جاتی ہے۔ بجلی، یہ کون بدتمیز کوا ہے جو میرے گھر کے سامنے میری شہزادی کو پریشان کر رہا ہے؟ ہٹ جا یہاں سے کالے کلوٹے، میری بیٹی کی شادی کسی شہزادے کوے سے ہی ہوگی، نہ کہ کسی ایرے گہرے کوے سے۔ ایسا کہتے ہوئے بجلی کوی کی ماں بادل کوی کو وہاں سے بھگا دیتی ہے۔ اب بادل کوا بجلی کوی کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور وہ ہر سمے اسے گیت سناتا ہے۔ بجلی کوی بھی آہستہ آہستہ بادل کوی سے پیار کرنے لگتی ہے۔ اے میری بجلی، تیری آنکھیں جیسے کالے گلاب کے دو دانے، تیری کائیں کائیں سن کر بھول گیا میں سب گانے۔ اگر تو مل جائے تو چھٹ جائیں گے میرے سارے غم، ورنہ تیری یاد میں پی لوں گا ندی کا سارا زہر ہم۔ اوے بادل، یہ زہر والی باتیں کسی اور کو سنانا یہ شاعری ہے یا کسی بھوکے کوے کی فریاد؟ کم از کم کچھ ڈھنگ کا تو بولا کرو۔ میری سہیلی چڑیا کا پتی اسے تازہ تازہ انگور لا کر دیتا ہے اور تم مجھے ندی کا گندا پانی پلانے کی دھمکیاں دے رہے ہو۔ انگور؟ ارے بجلی، تم کہو تو پورے جنگل کے انگور تمہارے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دوں۔ بس ایک بار تم اپنی ماں کو تو منا لو۔ بادل کوی نے اتنا کہا ہی تھا کہ ایک اڑتا ہوا جھاڑو آ کر سیدھا بادل کے سر پر لگتا ہے۔ بادل کوا ڈر جاتا ہے۔ ارے او کالے کوے، تیری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کے آس پاس منڈلانے کی؟ ماں جی، اب ضد چھوڑ دے، میری شادی اپنی بیٹی سے کروا دے، میں آپ کی بیٹی کا بہت خیال رکھوں گا۔ نہیں کالے کوے، میں اپنی بیٹی کی شادی تجھ سے نہیں کروں گی، میں اپنی بیٹی کی شادی ٹیڑھی چونچ والے کوے سے کر رہی ہوں، وہ جنگل کا سب سے امیر کوا ہے۔ پرنتو ماں، بادل میں کیا کمی ہے، کتنا سندر تو ہے۔ تو چپ کر جا بجلی، تجھے یہ کالا کوا کہاں سے سندر لگ رہا ہے؟ بھاگ جا یہاں سے کالے کوے، مرنا مار مار کر تیرے پنکھ توڑ دوں گی۔ بادل کوا ڈر کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ وہ اپنے دوستوں طوطے اور کبوتر کے پاس جاتا ہے۔ طوطے اور کبوتر یار، تم میرے ساتھ چلو اور بجلی کی ماں سے بات کرو کہ وہ میری شادی بجلی سے کر دے۔ اگر مجھے بجلی نہ ملی تو میں مر جاؤں گا۔ لیکن بادل یار، ہمیں تو خود بجلی کی ماں سے ڈر لگتا ہے۔ بادل، تم چنتا نہیں کرو، چلو ہم چڑیا کے پاس جاتے ہیں، وہ بجلی کی پڑوسن ہے، وہ ضرور ہماری مدد کرے گی۔ ایسا کہتے ہوئے کبوتر، طوطا اور کوا تینوں مل کر کومل چڑیا کے گھر جاتے ہیں۔ چڑیا بہن، بجلی تمہاری سہیلی ہے،
अब तुम ही मेरा रिश्ता बिजली से करवा सकती हो और उसकी माँ को मना सकती हो। देखो बादल भैया, बिजली की माँ किसी की बात नहीं सुनने वाली, लेकिन तुम्हारे कहने पर एक बार मैं जरूर चलती हूँ। बिजली का भी नदी के पास अपनी माँ के साथ बैठी हुई थी। तभी चिड़िया, तोता, कबूतर और कौवा वहाँ आते हैं। माँ जी, बादल बहुत अच्छा है, वो आपकी बेटी को बहुत खुश रखेगा और आपकी बेटी भी बादल से प्यार करती है। आप इन दोनों की शादी कर दें। देख बेटी, बादल के पास कुछ भी नहीं है, न रहने के लिए कोई अच्छा सा घर और ना मेरी बेटी को देने के लिए कोई गहने। मैं तो अपनी बिजली की शादी किसी अमीर कव्वे से ही कराऊंगी। बिजली की माँ ऐसी बातें कर ही रही थी कि अचानक आसमान में एक चील उड़ती हुई आती है और उसे उठाकर ले जाती है। अरे ओ चील, छोड़ मुझे। बिजली बचा, अपनी माँ को बचा। हाय हाय माँ, बचाओ, कोई मेरी माँ को बचाओ, वो जालिम चील मेरी माँ को ले गई। माँ, आप चिंता नहीं करें, आपका दामाद आ रहा है। तोते, कबूतर, तुम आगे से जाओ और मैं पीछे से जाता हूँ। हम माँ जी को कुछ भी नहीं होने देंगे। ऐसा कहते हुए वो सभी पक्षी वहाँ से उड़ते हैं। बादल कौवा तेजी से जाता है और चील को धक्का दे देता है। चील के पंजों से बिजली की माँ नीचे गिरती है। तभी बादल कौवा तेजी से जाता है और बिजली की माँ को बचा लेता है। चील सभी पक्षियों को देखकर डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। बादल, तुम तो मेरे सुपर हीरो निकले, तुमने मेरी माँ की जान बचाई। हाँ बिजली, ये कौवा काला कलोटा तो है, लेकिन इसका दिल बहुत बड़ा है। आज इसने अपनी जान की परवाह किए बगैर मेरी जान बचाई। जा बादल, आज से बिजली तेरी हुई, परंतु याद रखना, अगर कभी मेरी बेटी को रुलाया तो झाड़ू से तेरे पंख तोड़ दूंगी। ये सुनकर सभी पक्षी हंसने लगते हैं। बादल और बिजली की शादी धूमधाम से हो जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। माँ, क्या अभी तक पापा नहीं आए? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्या आज फिर हमें भूखा सोना पड़ेगा? हाँ माँ, भैया ठीक कह रहा है, मुझे भी नींद नहीं आ रही। ऐसे लग रहा है जैसे मेरे अंदर कुछ टूट रहा है। क्या आज पापा हमारे लिए मीठा फल लाएंगे? मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा सब्र करो, बस तुम्हारे पापा जंगल के उस पार गए हैं, जहाँ ढेर सारे मीठे मीठे फल हैं। वो जरूर कुछ न कुछ लेकर आएंगे। बस अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि तुम एक बहुत बड़े मीठे फल के पेड़ के ऊपर बैठे हो। अरे ओ कोमल, बंद कर, ये झूठी तसल्लियां देना बंद कर। तेरे इस चोंचों से तेरे बच्चों का पेट नहीं भरने वाला। जब से तू इस घर में आई है तो मनहूसियत पूरे घर में छा गई है। मेरा बेटा बंटी, जो कभी जंगल का सबसे शक्तिशाली पक्षी था, आज हड्डियों का ढांचा बन गया है, सिर्फ तेरे कारण, इन मनहूस बच्चों का पेट पालने के लिए। माँ जी, ऐसा ना कहें, बच्चे तो मासूम होते हैं। और माँ जी, इन सब में मेरा क्या कसूर है? मैं तो खुद कई दिनों से सिर्फ पानी पीकर ही गुजारा कर रही हूँ। कसूर तेरी किस्मत का है। देखो जरा, रात आधी गुजर गई है और मेरा बेटा अभी तक किसी खतरे में भटक रहा होगा। सुन ले, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं तुझे जीने नहीं दूंगी। तभी बंटी चिड़ा थका हारा घर लौट आता है। कोमल, माँ, मुझे माफ कर देना। मैंने पूरा जंगल छान मारा। चीलों से छुपकर मैं दूर दूर जंगल तक गया, पर कहीं भी मुझे कुछ खाने के लिए नहीं मिला। जंगल में सूखा पड़ा है, कहीं से कोई दाना तक नहीं मिल रहा। बंटी जी, आप आ गए हैं, यही बहुत है। ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। आप आराम करें, आपके पंख घायल हो चुके हैं। आराम? ये आराम का समय है? फिर बंटी चिड़ा अपने घोंसले में सो जाता है और कोमल चिड़िया अपने पति के पंखों पर मरहम लगाती है। अगली सुबह हो जाती है। बंटी सुबह सवेरे ही दाने की खोज में निकल जाता है। कोमल चिड़िया अपने बच्चों को लिए बाहर बैठी हुई थी। तभी बिजली कभी मीठे फलों की टोकरी लिए वहाँ आती है। अरे कोमल बहन,
अभी तक यहीं बैठी हो। मैं यहाँ से घर जा रही थी तो बच्चों के रोने की आवाज सुनकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। देखो कैसे इन मासूम बच्चों के चेहरे पीले पड़ गए हैं। ऐसा कहते हुए बिजली का भी एक मीठा फल उन बच्चों के सामने रखती है। ये लो बबलू और मीना, ये मीठा फल खा लो। तभी चिड़िया की सास भी वहाँ आ जाती है। अरे बिजली, तेरे पास इतना फल कहाँ से आया? पूरे जंगल में तो सूखा पड़ा है, पक्षी मर रहे हैं भूख से, और तेरे पास ये फलों से भरी हुई टोकरी। माँ जी, मेरे जैसा दिमाग हो तो सब कुछ मिलता है। मैंने सुना है आपका बेटा बंटी पूरी रात भटकता रहा है, पर इसे खाने को कुछ नहीं मिला। सच तो ये है कि वो मेहनत तो करता है लेकिन किस्मत का मारा है। बिजली बहन, आपका फल देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप यहाँ क्यों आई हैं? मैं जानती हूँ कि बगैर किसी मकसद के आप किसी के पास नहीं जाती। तौबा तौबा कोमल, तुम मुझे इतना गलत समझती हो। मैं तो सिर्फ मदद करने के लिए आई थी। मैं तो तुम्हें बताने आई थी कि नदी के उस पार काला महल है, जिसकी मालकिन एक बहुत बड़ी और दयादिल चील है। इसे अपने अंडों की निगरानी के लिए एक नौकरानी की जरूरत है। बदले में वो उसे इतना अनाज और सोना देगी कि आने वाली 7 नस्लें शाही जिंदगी गुजारेंगी। नहीं बिजली, सब जानते हैं जो पक्षी भी नदी के उस पार काले महल में गया है वो कभी वापस नहीं आया। मैं अपने बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तो ठीक है चिड़िया, मत जाओ। अपने सामने इन बच्चों को मरते हुए देखो। जरा देखो अपने बच्चों को, भूख के कारण कैसे कमजोर हो गए हैं। कल को ये मर गए तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। माँ वही होती है जो अपनी संतान के लिए अपनी जान खतरे में डाल दे, वो नहीं जो इनका तमाशा देखे। हाँ कोमल, बिजली ठीक कह रही है। तू तो बहुत बड़ी नेक बनती थी, अब अपने बच्चों की जिंदगी के लिए इतनी सी कुर्बानी नहीं दे सकती। बंटी को मैं संभाल लूंगी, तू बस जा और अनाज लेकर आ जा। अगर तू ना गई तो मैं समझूंगी कि तू इन बच्चों की सगी माँ नहीं है बल्कि इनकी दुश्मन है। कोमल चिड़िया अपने बच्चों की तरफ देखती है जो भूख से नाडाल होकर जमीन पर पड़े थे। वो रोते हुए कहती है, क्या क्या वो वाकई ही हमें अनाज देगी? क्या मेरे बच्चे पेट भरकर खाना खाकर सो सकेंगे? हाँ हाँ चिड़िया बहन, बस रात की ही तो बात है। तुम रात में जाओगी, अंडों का पहरा दोगी और सुबह होते ही अनाज का ढेर लेकर घर वापस आ जाया करोगी। चिड़िया बहन, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं खुद तुम्हें वहाँ छोड़ कर आऊंगी। कोमल चिड़िया अपने बच्चों के पास जाती है। मेरे जिगर के टुकड़ों, मुझे माफ कर देना। तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही, बल्कि तुम्हारी जिंदगी लेने जा रही है। अगर मैं लौट कर ना आई तो याद रखना, तुम्हारी हर सांस में मेरी ममता की खुशबू होगी। तभी बुलबुल वहाँ आ जाती है। कोमल, ये तुम क्या करने जा रही हो? बिजली की बातों में मत आओ। क्या तुम पागल हो गई हो? इस कपी का एतबार करना बहुत मुश्किल है। बुलबुल, मैं सब जानती हूँ। मेरा दिल भी कह रहा है कि ये रास्ता मौत का है, लेकिन जरा देखो, मेरे बच्चे भूख से दम तोड़ रहे हैं। अगर मैं यहाँ बैठी रही तो आज रात ये मर जाएंगे। ऊपर वाला सब ठीक करेगा। हो सकता है मैं इनके लिए भोजन ले आऊं। अगर मुझे मौत मिलती है तो मिल जाए, लेकिन मेरे बच्चों को जीवन जरूर मिलेगा। फिर कोमल चिड़िया बिजली कपी के साथ वहाँ से चली जाती है। बिजली कपी चिड़िया को एक काली गुफा में ले जाती है। आ गई बिजली, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अरे वाह वाह, ये तो बहुत नरम मांस है, जो मैं कभी ना कर पाई तुमने वो कर दिखाया। ऐसे चिड़िया का मांस ही तो मैं खाना चाहती थी। बिजली बहन, ये सब क्या कह रही है चील? अरे ओ पागल चिड़िया, ममता ने तुझे अंधा कर दिया था। अब तू इस चील की कैदी है और मैं तेरे घर पर राज करूंगी। धोखा। बिजली, तुम इतनी गिर जाओगी मैंने कभी नहीं सोचा था। अब मेरे बच्चों का कौन सहारा होगा और कौन उन्हें दाना देगा? चील आगे बढ़ती है और कोमल चिड़िया को एक पिंजरे में कैद कर लेती है और बिजली कपी को बदले में ढेर सारा भोजन देती है। बिजली खुश होकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर बुलबुल
कबूतर और तोते के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। वो काली कभी बहुत बुरी है, जरूर चिड़िया खतरे में होगी। हम सब दोस्तों को मिलकर चिड़िया की मदद करनी होगी। ऐसा कहते हुए वो तीनों दोस्त चिड़िया की मदद के लिए वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया, मुझे उल्लू वैद ने कहा है कि अगर मैं पीले रंग की चिड़िया का सूप पीऊंगी तो हमेशा जवान रहूंगी। आज तेरा आखिरी दिन है, याद कर ले, जिसको भी करना है। कोमल चिड़िया तो रो रही थी। जैसे ही चील उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है तो उसके दोस्त वहाँ आ जाते हैं। कबूतर, तोता और बुलबुल तीनों मिलकर चील पर हमला करते हैं और हमले में चील घायल हो जाती है। डर के मारे वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप समय पर ना आते तो मैं शायद अपने बच्चों को कभी ना देख पाती। चिड़िया बहन, गुफा में ढेर सारा भोजन है, लेकर चलते हैं। दूसरी ओर बिजली कवि और बादल कव्वा मिलकर चिड़िया के घर पर कब्जा कर लेते हैं। वो बच्चों को और सावित्री को रस्सियों से बांध देते हैं। कवि, तू बहुत बुरी है। तेरी बातों में आकर मैंने अपनी बहू को मौत के मुंह में भेज दिया। तभी कोमल चिड़िया और उसके सभी दोस्त वहाँ पहुँच जाते हैं। वो कौवों पर हमला करते हैं और उन्हें घायल करके वहाँ से भगा देते हैं। बच्चों, ये लो भोजन, देखो आपकी माँ आपके लिए दाना लाई है। बबलू और मीना अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होते हैं। बेटी, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे गलत समझा। दोस्तों, माँ की कदर करें इससे पहले कि वो खाक का हिस्सा बन जाए। हाय मेरा भाग्य, वो भी इस रोटी की तरह सख्त हो गया है। बिजली ने सुबह से काम पर लगाया हुआ है। कभी कहती है घोंसले की सफाई करो और कभी उसके लिए नदी से ठंडा पानी लाओ और कभी मीठे मीठे फल। लगता है मैं उसका पति नहीं बल्कि नौकर हूँ। बादल कव्वा अपने आप से बैठा ऐसे बातें कर रहा था। तभी हवा में एक खुशबू महकती है। एक कवि गले में मोतियों की माला पहने और आंखों पर काला चश्मा लगाए उड़ती हुई वहाँ आती है। हाय हाय, ये कैसा जंगल है, ना ही कोई ढंग का पेड़ है और ना ही कोई सुंदर पक्षी। अरे ओ भाई साहब, जरा इधर तो देखना। जी जी, सुंदर कवि जी, आपने मुझे बुलाया? आप कौन है? कहीं आप आसमान से कोई परी तो नहीं उतर आई? पिंकी कवि अपना चश्मा उतारते हुए कहती है। कवि, तुम भी बहुत फनी हो। मैं परी नहीं, मेरा नाम पिंकी है। शहर वाले जंगल से आई हूँ। वहाँ मेरा अपना बंगला है। मैं तो यहाँ जंगल में घूमने आई थी, लेकिन अब तो ऐसे लगता है कि इस जंगल में सूखे पेड़ों और मिट्टी के सिवा कुछ भी नहीं। पिंकी जी, आपके आने से इस मट्टी में भी गुलाब खिल जाएंगे। मैं इस जंगल का सबसे हैंडसम कौवा हूँ। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बादल को याद करना। बादल कव्वा पिंकी के साथ बैठा हुआ था। तभी उसे दूर से बिजली कवि की आवाज आती है। अरे ओ बादल के बच्चे, कहाँ मर गया है? कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। सुबह से भेजा है मीठे फल लाने के लिए, अभी तक घर नहीं लौटा। ऐसे बड़बड़ाती हुई बिजली कवि बादल कवि को ढूंढ रही थी। लगता है वो डाइन यहीं आ रही है। पिंकी जी, आप जल्दी से घनी झाड़ियों के पीछे छुप जाएं। ये आवाज मेरी दूर की एक पागल खाला की है। जब इसे दौरा पड़ता है तो ये किसी को भी काट लेती है। क्या कहा? पागल खाला? सच में ये जंगल बहुत खतरनाक है।